I would also like to say the brain point, and the participant schools in this. It is the immigration of most educated and talented workers from our country to another, and it has become a trend in the developing countries where high level skilled persons or educated persons have adopted to migrate from their own mother country to other countries for want of better economic opportunities. Teachers of different schools and students and media persons, as you know, today's program is being organized by Zonal Education Officer of Noor, Department of Education. Respected chief guest and all audience present here, I wish a pleasant afternoon to all of you for the topic of brain drain. The name and fame of our country are due to we people, and development of the country depend on the intelligence and resourcefulness of its people. So how can a country think of its development if all our talent run towards the advanced countries leaving behind their own country? So here I am with the topic of debate on brain drain against it. Brain drain is a major issue with which India is trying to cope up with. No doubt, the loss of talent has a negative impact on national growth. Thousands of talented engineers, doctors, administrators, teachers are of thousands of skilled professionals who migrate to advanced countries like UK, USA, Europe, America, Canada, etc. It is very sad but true that India is acting as a nursery where they develop qualified professionals for advanced countries around the world. Brain drain in India is unemployment. Millions of engineers, doctors and other professionals graduate every year in India, and among that only 40% get a good job and the rest 60% remain unemployed. Myself Rishu Singh from Government High School Gadkhal. Good morning to our today we are here to discuss or debate on brain drain, a win for India. For this we have to understand the term brain drain in simple words. Brain drain is migration of skilled and highly educated individuals moving from our nation to another in quest of better job prospect or better pay. The term brain drain refers to the international transfer of human resources, and it applies mainly to the migration of highly educated individuals from developing to developed nation. शिक्षा की गुणवत्ता को सुधार लाना तथा शिक्षा को अंतर्राष्ट्रीय सतह से जोड़ना, डॉक्टर, इंजीनियर और वैज्ञानिक के लिए कुछ संस्थानों की व्यवस्था करना ताकि वे अपने अनुसंधान को पूर्ण रूप दे सकें, भारतीय बाजार में अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ना, राजनीतिक अशांति को शिथिल करना। हाल ही में मोदी सरकार के आने के बाद से ब्रेन ड्रेन रुक सा गया है और अब ब्रेन अगेन हो रहा है। जानी जो भारतीय विदेश में अपने सेवाएं दे रहे थे वह धीरे धीरे अपने वतन की ओर वापस आने लगे हैं। सरकार ने वैज्ञानिक और युवाओं के लिए स्कॉलरशिप तथा उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए जैसे व्यवस्था की है तथा जो वैज्ञानिक और व्यापारी भारत से बाहर हैं वह भी अब भारत आकर व्यापार करना चाहते हैं, जिसका कारण NRI लोगों का भी
लोगों का भारत की तरफ लगाव तथा अर्थव्यवस्था का लचीला होना है तथा भारत वर्तमान में एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार के रूप में उभर कर सामने आया है। And India suffer from this problem of losing their talent to other countries. Now I मैं इस कार्यक्रम के बारे में यही कहूँगी कि जो भी हमारे आर्मी भाई जो हैं वो बच्चों के हित के लिए जो कर रहे हैं ये हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ ये भी जुड़ गए हुए हैं। जैसे इन्होंने पिछली बार बच्चों को कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी थी, 15 दिन कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी थी। उसके बाद इन्होंने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी करवाया था और आज जो इन्होंने टॉपिक रखा हुआ है, डिबेट कंपटीशन रखा हुआ है ब्रेन ड्रेन का, तो ये बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी था और बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद था। इससे बच्चे जो हैं काफ़ी बच्चों को पता चल चुका है कि बाहर जाने से अपने देश को क्या नुकसान होता है। मैं आप सबके माध्यम से पहले तो इंडियन आर्मी की तरफ से जो ये प्रोग्राम रखा गया उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अपने जेडियो मैम जो जिन्होंने इतना कीमती वक्त अपना निकाला, इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो आपने ये प्रोग्राम की कवरेज की। देखिए ये इंडियन आर्मी की तरफ से पहले भी हमारे स्कूल में एक कंप्यूटर का कोर्स करवाया गया और एक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करवाया गया, जिससे कि हमारे बच्चों की जो नॉलेज है वो एनहांसमेंट हुई, स्किल डेवलपमेंट हुई। और आज का ये जो टॉपिक था इज़ ब्रेन ड्रेन इज़ वेन फॉर इंडिया, तो ये एक जो अभिशाप बनता जा रहा है हमारे देश के लिए, जो माइग्रेशन है, एक जो लोग पढ़े लिखे हैं, स्किल्ड पर्सन हैं, वो एक ट्रेंड बन गया है कि वो हम अपने देश को छोड़ के दूसरे देशों में जा रहे हैं। और इससे क्या हो रहा है कि हमारे देश की जो डेवलपमेंट है, जो उन्नति है, वो उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि जो टैलेंटेड पर्सन हैं वो दूसरे देशों में जाएंगे तो वहाँ पर जाके वो डेवलपमेंट करेंगे। जैसे हमारे बहुत से साइंटिस्ट या इंजीनियरिंग हैं और डॉक्टर्स वगैरह हैं जो है, तो वही फैसिलिटी हम जाके बाहर जाते हैं, वहाँ पर वो फैसिलिटी लेते हैं, जबकि वहाँ पर डॉक्टर हमारे हैं, हमारे इंजीनियर वहाँ पर हैं, हमारे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियाँ आप देखो, उसमें CEOs जो हैं वो हमारे देश से गए हैं। तो वो जो इकनॉमी में हमारा जो लॉस हो रहा है, उसको रोकने के लिए ये जो एक सोच नई जो है, इसकी ज़रूरत है बच्चों के अंदर नई सोच पैदा करने की, कि जो टैलेंट है उसको हमने अपने देश में रखें, अपने देश की उन्नति के लिए, अपने देश की डेवलपमेंट के लिए। तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम था जो इंडियन आर्मी की तरफ से करवाया गया, और इससे मैं समझता हूँ कि बच्चों को अंदर एक नई सोच पैदा होगी, और इस सोच की हमारे देश को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस समय, ताकि हमारा देश जो है वो एक विश्व गुरु बन सके हर लिहाज से, हर क्षेत्र में। थैंक यू। My name is शगुन बख्शी and I am from गवर्नमेंट हाई स्कूल सुनैल। मुझे बहुत अच्छा लगा कि भारतीय सेना हमारे स्कूल में इतने सारे कंपटीशन कराती है और हमें इससे बहुत फ़ायदा होता है। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहती हूँ कि इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ और मैं खुश भी हूँ कि हमारे स्कूल में इतने सारे कंपटीशन होते हैं इंडियन आर्मी की तरफ से। इसके बारे में क्या कहना चाहिए जो आज का कंपटीशन था? आज का कंपटीशन बहुत अच्छा हुआ और इससे हमें कॉन्फिडेंस भी मिलता है कि आगे हम
हम तरक्की इससे कर सकते हैं। आज इस प्रोग्राम में आप फर्स्ट आए हो, आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा और इस कंपटीशन का टॉपिक था ब्रेन ड्रेन अ बेन फॉर इंडिया। नेम इज़ रिया पवार फ्रॉम क्लास 10th और आज का हमारा टॉपिक था ब्रेन ड्रेन अ बेन फॉर इंडिया। ये हमारे इंडिया की तरक्की के बारे में है और इसमें कुछ लॉस भी हैं। हमारी इंडिया जैसे एक डेवलपिंग कंट्री है। डेवलपिंग कंट्री मतलब कि आगे आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। हमारे इंडिया में साइंटिस्ट हैं, फिर क्या कहते हैं फिजिशियंस हैं, टेक्निक, हमारे इंडिया में इतनी सारी टेक्निक है कि हमारा इंडिया आगे आगे बढ़ता जा रहा है। इसमें हमारे लॉस भी हैं कि जैसे हमारे इंडियंस जाके फॉरेन में जाके कुछ भी मतलब बाहर वाली कंट्रियों में जाके वो कुछ भी काम वगैरह करते हैं तो उससे हमारी इंडिया को लॉस ही है। लेकिन अगर वो हमारे इंडियन, अगर हम अपना टैलेंट हमारे इंडिया अपनी इंडिया के लिए ही अपना टैलेंट दिखाएंगे तो इससे हमारे इंडिया को ही प्रॉफिट है।